सो कम ऑन फास्ट। जो लोग सेशंस में वीडियो के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो मैं वीडियो के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा, मेनली अभी ऑनलाइन सेशंस होते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है जूम के सामने बताया पूछा जाएगा, तो आपका जूम हो या स्काइप हो, तो आपका वो सारे फियर खत्म हो जाना चाहिए। और क्योंकि कुछ लोग ऑलरेडी 50% 60% सिलेबस से ऊपर आ चुके हैं, तो अब ये टाइम है कि हमें स्टार्ट करने के लिए ये, ताकि आप अगले से 1 से 1.5 महीने में 2 महीने में आप पूरा परफेक्ट हो जाओ और इंटरव्यू निकालने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो कितने लोग रेडी है, प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स कि डायरेक्टली आप क्वेश्चंस का आंसर ऑन वीडियो मोड में कर सकते हो विदाउट एक्सक्यूज। Okay, Praful is ready and yes sir. okay, और कौन-कौन ready है? See, like this is the first session. I can let you know. Okay, fine. Like if you are not able to come, otherwise, if you want to attend from the next session, I will not give you the entry in this session if you are not able to enable your video. So I have already asked you to join the sessions when you are able to show your videos. So if you are serious, you can attend. If you are not serious about the interview, leave the meeting and you can go out. I am ready to teach only the person. If the 4 to 5 people they want to learn, I'm okay with that. So don't take it like this message seriously. Otherwise, I have no issue to provide a training only to 4 or 5 people. Other, if you have if you know you are able to crack the interview, you can do yourself. Don't blame me or CNC that like I am not able to crack the interview because of whatever the reason. So I just want to, it should be like it's real time, like a session will be happen. So you have to be prepared for that. So if you are not doing, then never ever come to with me that I'm not getting the job or something. So that excuse के साथ आप मेरे पास मत आना. Okay. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. जो लोग स्क्रीन पे मुझे जिनका चेहरा दिखेगा, आई विल आस्क द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू रिप्लाई. रेस्ट जो भी लोग हैं आप सिर्फ सुन सकते हो. इफ यू आर नॉट रेडी देन लाइक यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट. ओके, सो जो लोग रेडी है, you can आप वीडियो ऑन करो and we will start the question answer. Okay, so basically we will start the first questions. You must be all aware about that. The people they ask the first questions tell me about yourself. Okay, so I'll ask the first questions about that. Tell me about yourself. See, this is the very basic questions and like it's the very tricky questions. When you have a time and you are able to explain very well, you can easily crack that interview when the first question. Because when you start giving the answer of the first questions, interviewer start thinking, okay, I have to hire you or we want to hire you. पहले क्वेश्चंस में ही डिसाइड हो जाता है. तो अभी हमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो डिसाइड होता है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर क्या करेंगे. सो क्विकली विल चेक लाइक हाउ मेनी पीपल दे आर रेडी विद द आंसर. सो व्हाट वी कैन डू, विल स्टार्ट विद विकी. विकी अग्रवाल, यू कैन गिव मी आंसर इफ ड्यूरिंग द इंटरव्यू वी विल आस्क लाइक व्हाट इज, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. क्या बोलोगे, बताओ. I am Vicky Kumar. I am graduate. I have done B from Nagpur University. I am hardworking and honest person. You can trust me, sir. I have a skill. I have a skills of all web skills. Okay. Okay, fine. No issue. Manali, can you give me answer? Yes, sir. Yes. Good evening, sir. Very good evening. My name is Manali Erapure. I am basically from Kolhapur. I have completed my bachelor's from Bharati Vidyapeeth College of Engineering with 67%, and now I'm doing certification in front end development. Coming to my strength and weakness, my positive
mindset. And my weakness is sometimes I'm getting overthink. My hobbies are I love traveling. Sometimes I'm reading storybooks. That's all Okay, about me. fine, Thank you. Manali. Shraddha Pandey, can you explain? Tell me about yourself. Good evening, sir. Myself, Shraddha Pandey. I have passed MA B.Ed from UP Gorakhpur, and in present, I was a teacher, but I stopped my job, and I have one daughter. My free time, I watch TV and play my harmonium. In future, I am a successful web developer. Thank you. Okay, fine. See, just I have like a listen that 3-4 जो आप लोगों ने बोला, अब इसके बेसिस पे मैं बताता हूँ, और ताकि जो नेक्स्ट जो लोग हैं उनसे मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको आंसर करना है। देखो, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपको क्या नॉलेज है, कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कीप इट माइंड। सो व्हाट कंपनी नीड्स, जो चीजें कंपनी को चाहिए वही चीजें आपको अबाउट योरसेल्फ में बोलना है। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर यू हैव टू थिंक अबाउट व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो फर्स्ट हमें क्या बोलना है? तो फर्स्ट योर नेम, फर्स्ट नेम। सेकंड क्वालिफिकेशन। मैं आपको छोटे छोटे चीजों पे नहीं जाऊंगा कि आप हॉबी बताओ, हैबिट बताओ, ये सब का कोई मैटर नहीं करता है कोई कंपनी के लिए। जब आप बीपीओ इंडस्ट्री में हो, मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, तो वहां पे इस चीज का फर्क पड़ता है। बाकी चीजें वन मोमेंट। स्वप्निल, यस यू कैन ट्राई। हाँ स्वप्निल, आप बोल सकते हैं, आ जाइए। Good evening, sir. My name is Swapnil Dharme. Work as a my name is Swapnil Dharme. Work as a web developer in CNC Web World name last 2.5 years, and have a sir HTML5, CSS, JavaScript, Bootstrap, and my projects are Perfect Parvarish, Verma House, Lords Hotels, and my domains are hotel management and real estate domains. And my responsibilities are for coding, designing, and layout of web page or website at per company and client specifications. That's all about myself, sir. Thank you. Okay. So आप लोग जो अबाउट योरसेल्फ इन्होंने बताया, कितना क्लियर हुआ आप लोगों को कि यहाँ पे राहुल व्हाट इज योर पॉइंट? यहाँ पे क्या लगा कि जो स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने बताया, ओके तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको स्टेप बताता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको किस क्या स्टेप को फॉलो करना है। तो फर्स्ट आपका नाम, सेकंड योर एजुकेशन, थर्ड इफ यू हैव डन एनी काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन, एंड फोर्थ कनेक्शन। देखो बहुत लोग ऐसे हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं और आप आईटी में जा रहे हो, तो आप नॉन आईटी से आईटी में क्यों जा रहे हो? सो देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन दैट, कि आप ऐसा नहीं कि चलो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं अभी सॉफ्टवेयर में आ गया, बट क्यों आओगे? अगर ये चीज का आंसर अगर इसमें नहीं देते हो तो ऑटोमेटिक वो आपसे पूछेगा कि आप सिविल इंजीनियर हो, आप आईटी में क्यों आओगे? सो दैट द क्वेश्चन आंसर यू हैव टू गिव ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर आपको प्रोजेक्ट ऐड करना है, अब बोलो बहुत लोगों का ये कंसर्न होता है मैं तो सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहा हूँ, मैंने प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं है। तो ये कोई मैटर नहीं है कि आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है। मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब रिज्यूम प्रिपरेशन के सेशंस होगा तो कहाँ से प्रोजेक्ट लाएंगे और क्यों ऐड करेंगे। और मैं कहता हूँ कि जो रिज्यूमे जितने भी टेलीग्राम पे ओपनिंग्स आते हैं और जो लोग कहते हैं कि मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, उनका एक ही रीजन होता है कि उनकी रिज्यूमे उनको पता ही नहीं कि मुझे रिज्यूमे कैसे बनानी है और मुझे किस तरीके से रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा। तो आपको ये भी प्रोजेक्ट, जब तक कि रिज्यूमे में आप प्रोजेक्ट नहीं डालोगे जिस टेक्नोलॉजी के लिए आप अप्लाई किए हो, तब तक आपका रिज्यूम भी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। तो ये भी चीजें आपको मैटर करेगा, हमें क्या क्या ऐड करनी है। और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, और प्रोजेक्ट के बाद आपको एक्सप्लेन करना है आपकी जॉब एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि आप कंपनी में क्यों अप्लाई किए हो। देखो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस का मैं आंसर क्यों कर रहा हूँ, और ये शॉर्ट एंड सिंपल में आपको आंसर करना है, ताकि उससे ये होगा कि आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब अगर आपने इंटरव्यू असदुल्ला का देखा होगा आप यूट्यूब पे,
उसने क्या किया था। सी इंटरव्यू निकालने का स्मार्ट तरीका क्या है कि आपको जो टेक्नोलॉजी हो, जो प्रोग्रामिंग हो, नॉलेज है, उसके बारे में इतना ज्यादा उनको बता दो, या 5 मिनट के बदले आप 10 मिनट उनको एक्सप्लेन कर दो, ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए कि नहीं इसके पास नॉलेज है। दूसरे जो आपका ड्रॉबैक है, फॉर एग्जांपल कि आपका जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग पॉइंट है, तो अगर कोई क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट पे पूछा गया तो जावास्क्रिप्ट पे इतना डिटेल में बता दो कि 10 मिनट 15 मिनट आप जावास्क्रिप्ट पे डिस्कस कर लो उसके साथ, तो दूसरे क्वेश्चन का पूछने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जब दूसरे क्वेश्चन का टाइम नहीं मिलेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा इंटरव्यू क्रैक करना। सो इंटरव्यू इज अ मैनेजमेंट, कि मुझे इंटरव्यू को निकालना कैसा है। और मैनेजमेंट कहने क्या मतलब कि नॉर्मली अगर फर्स्ट राउंड देखा जाए तो लगभग 15 से लेके हाफ एन आवर के बीच में इंटरव्यू होता है। अगर आपने 5 मिनट्स अपने अबाउट योर सेल्फ पे ले लिया, प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में अगर 1 या 2 प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने में लगभग 5 मिनट्स ले लिया, तो हार्डली आपके पास कितना टाइम बचेगा, 10 to 15 मिनट्स, इतना टाइम मिलेगा। इतने में जो क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो फिर नेक्स्ट हो जाएगा। तो आपको इंटरव्यूअर को स्मार्टली किस तरीके से हैंडल करना है। सी इंटरव्यूअर ये समझता है कि मुझे आपको क्वेश्चन पूछेगा, मैं आंसर करूंगा, लेकिन ये भी देखना है कि मैं किस तरीके से उसको क्वेश्चन के आंसर को हैंडल करूंगा। एक मैं आपको ब्रीफ बताता हूं कि हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया हूं। एक बार फिर से फॉर्मेट मैं रिपीट करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक और कोई क्वेश्चन, एक बार और जो लोग ऑलरेडी हमने देखा है, स्वप्निल ने एक्सप्लेन किया है, उसके बेसिस पे मैं चाहूंगा कि शियाजनी आप एक्सप्लेन करोगे क्या अबाउट योरसेल्फ? शियाजनी, एम आई ऑडिबल टू यू? अनम्यूट करके स्टार्ट कर लो। आपकी आवाज नहीं आ रही है शासनी, सॉरी संचाइनी। ठीक है, आपके साथ कुछ ऑडियो का इशू है संचाइनी। प्रभात, आप स्टार्ट करेंगे? Yes, sir. हाँ प्लीज। Good evening, sir. I am Prabhat from Samastipur, Bihar, and I had done graduation from BRB College, Samastipur, with commerce stream. And my hobby is expending time with computer and always try to research new things on in computer sector, computer technology. That's it, sir. ओके देखो, अभी भी हमने इस चीज को फॉलो नहीं किया। मैं एक बार आपको मीन्स पूरा एक बार बोल के बताता हूँ, एंड देन यू हैव टू थिंक क्या करना है। अप्रॉक्स 3 to 5 मिनट्स मैं एक थोड़ा शॉर्ट करूंगा, बट आपको प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है सब। ये बताओ, सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल रहोगे या इंग्लिश में? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में बोल जाते हैं, फिर वो भूल जाता है कि मुझे यही टॉपिक बोलना है। तो ऐसा रहेगा तो मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ और फिर एक बार इंग्लिश में भी बता देता हूँ, ताकि एटलीस्ट आप लोग एक फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि मुझे इंटरव्यू में क्या बोलना है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या बोलना है कि फॉर एग्जांपल मैं प्रभात का एग्जांपल लेता हूँ। माय नेम इज प्रभात, आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जो भी आपको बीसी और एमसीए किया हुआ है। और देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में हमें बताना है, बट फोकस मुझे कहाँ पे करना है, प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, कीप इट माइंड। तो माय नेम इज प्रभात, आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आई हैव, आप अगर ईयर फ्रेशर हो तो यू कैन मेंशन द ईयर, व्हिच ईयर पास आउट है। इसके बाद आप देखो, 2 चीजें होती है, एक आपका कॉलेज होता है और दूसरा यूनिवर्सिटी होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी ज्यादा फेमस है आपके शहर में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं सपोज मैं पुणे में रहता हूँ, तो यहाँ पे लोग पुणे यूनिवर्सिटी को ज्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू कोई भी कॉलेज। अगर मान लो कि मैंने MIT कॉलेज लिया, VIT कॉलेज लिया, जो भी है, तो लोग लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को लोग ज्यादा जानते हैं। तो अगर आपको ये भी देखना है, ये आपको अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे रिसर्च करना है कि कौन सा अच्छा रहेगा। तो मुझे जैसे ग्रेजुएट बोलते हो, आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। इफ अगर आपका कोई कॉलेज जो है
मीन्स यूनिवर्सिटी ज्यादा फेमस है तो वहां पे आप कॉलेज का नाम डाल सकते हो। अंडरस्टैंड द ट्रिक कि आपको लोग कैसे रिमेम्बर याद करके रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो वहां पे यू हैव टू मेंशन दैट लाइक आई एम फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि सिविल से मैंने इंजीनियरिंग की है, बट at the last year at the last year I thought like this is not a part of my job, so initially I start learning front end development or web development, and I started working on the website, and when I realized that there's a many more things we have to learn, then start the certification course from CNC Web World, well I have learned यहाँ के बाद जो लर्न बोला हूँ, यहाँ के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बोलना है। सी सो पीपल अंडरस्टैंड कि आपको क्या सीखा है। HTML, CSS, JavaScript, HTML5, CSS3, jQuery and Bootstrap. I have also worked in wireframe where like some client requirements, in that case we can design a project. So देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट क्यों बोला थोड़ा स्लो, ताकि सामने वालों को लगे कि ये प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे आपने काम किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ ये चीजें अगर मैं उनको ये बोल दूं कि आई हैव नॉलेज ऑफ HTML, CSS, JavaScript, HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, सो ये टोन नहीं चलेगा वहां पे, बिकॉज जब भी हम कुछ बोलते हैं तो एटलीस्ट क्या होता है कि 4 से 5 सेकंड स्टोर करने के लिए टाइम लगता है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट वे। सो अभी आपने क्या किया कि आपने सिविल बैकग्राउंड से हो, फिर आपने इंटरेस्ट आपको वेब डेवलपमेंट में था और आपने CNC वेब वर्ल्ड से सर्टिफिकेशन कोर्स किया। सर्टिफिकेशन के बाद आपने क्या किया, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोजेक्ट में हम लोग क्या ले सकते हैं। अभी आप लोग को सबसे सिंपल मैं बताता हूँ कि प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होता है इंटरव्यू में। तरीका क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट लो, एक आई थिंक फेसबुक से सब लोग अवेयर होंगे, राइट। तो वो फेसबुक से जब आप अवेयर हो तो वहां पे हम लोग क्या बतानी है कि आई हैव वर्कड वन प्रोजेक्ट दैट इज कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इट्स लाइक सिमिलर टू फेसबुक, where someone they will sign up with a name, email address and phone number, and we have verified with OTP, one time password, so we can get the genuine data like a genuine user who can sign up the website। देखो यहाँ पे मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, ये सिंपल है, यहाँ पे आप कुछ बोल नहीं सकते, नॉर्मली आप नहीं साइन अप करवा रहे हो, बट OTP की मैं बात क्यों किया हूँ, ताकि आपको पता चले, कंपनी को पता चले कि आपने एक डेटा जो जेन्यून जो यूजर है उसके लिए एक सिस्टम बनाया है, ताकि कि जो डेवलपर की जो क्लाइंट की नीड है वो डिजाइनर और डेवलपर अच्छे से समझ पाएगा। और यही रीजन है कि इस चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो समझ में आया कि अब यहाँ पे आपने साइन अप की बात किया, देन व्हेन लाइक यूजर दे विल गेट साइन अप then they can log in with a username and password, and then the next project flow will come on the dashboard. So dashboard people they can upload their pictures, videos, they can send a friend request, they can connect, they can do the chat, they can update something what's going on every day by day, every day. So that's the way like you can mention that. And here I have used HTML5, I have to make a web page, JavaScript where I have make a form for the form validation, I have used for that. jQuery I have used some effect like a video effect also, or if you play that video, so it's kind of pop-up will come on front and you can play that video. So that kind of the project I have worked. And after this project I started working with project में e-commerce ले लेता हूँ example के लिए. So I worked on one project that is a kind of e-commerce project. So e-commerce में normally जैसे Flipkart का ले लो, Amazon का ले लो, same जैसे explain करना है। अब यहाँ पे देखो क्या आपने समझा, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, अब जो मैंने एक बताया हूँ इसका मीनिंग आपको समझा दूं। मैंने अपना नाम बताया, अपना दूसरा मैं डिग्री बता दिया, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में बता दिया, मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ मैंने ये बता दिया, क्यों आईटी में जाना चाहता हूँ मैंने ये बता दिया, प्रोजेक्ट पे मैंने कौन सा काम किया ये बता दिया हूँ, प्रोजेक्ट को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। अब बात आती है, मैंने दूसरे प्रोजेक्ट भी करना बता दिया हूँ। अब उसके बाद लास्ट में एक चीज ये डाल दो कि आई जस्ट गॉन थ्रू योर रिक्वायरमेंट एंड माय स्किल्स इज मैच विथ योर रिक्वायरमेंट, सो दैट्स व्हाई आई अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन एंड आई होप आई कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। इतना बातें मुझे अबाउट योरसेल्फ में बोलना है। अब देखो इससे अब ये अबाउट योरसेल्फ का मीनिंग क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। पहली मीनिंग कि वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप सिविल से क्यों हो, उस क्वेश्चन का आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, उसका आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया।
आपसे वो नहीं पूछेगा कि प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, ऑलरेडी आपने इसको आंसर दे दिया। तो जब कोई आदमी कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन के आंसर देते हो, मीन्स क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। बट बिफोर आस्किंग द क्वेश्चंस, व्हेन यू रिप्लाई द आंसर, ही विल ओनली लिसन, ही विल नॉट आस्क फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। सम इंटरव्यूअर मे विल आस्क, सो वो चीज है। बट कैसा होता है कि 70 to 80% आप इस वे से जाओगे तो आपके नंबर ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे और सिलेक्शन के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। ये पार्ट क्लियर हुआ कि कितने आसानी से है हम लोग अबाउट योरसेल्फ को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। हाउ मेनी पीपल यू थिंक अबाउट दैट दिस इज द वेरी क्लियर? Yes, sir. कितने लोगों को क्लियर है? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स क्लियर, जो लोग लाइव मींस वीडियो मोड में है और जो लोग ऐसे ही हैं वो भी। ओके अब हम लोग देखते हैं कि जिस जिस फॉर्मेट में मैंने बताया हूँ, कौन इसी फॉर्मेट को कॉपी करके अपने बारे में बता सकता है? टाइप मी इन चैट बॉक्स, जो लोग बता सकते हैं। आई वांट रियल टाइम रिहर्सल्स। राहुल प्लीज कम एंड वी कैन स्टार्ट। राहुल गौर। Can you hear me? यस यस, Yeah. Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। I am Rahul Gaur. Basically, I am from Allahabad, and I have already done to my engineering from the MNIT Allahabad. That's my background was and specialization is a computer science and engineering, and that's my graduation. It was passed out from the 2013, and I have already work experience in the IT company as an application developer. Then after that, when I was left my job, then after that I have got admission from the MBA college. There's the same college from the MNIT Allahabad, and that's my area of specialization is the marketing and HR. So I decided when I was in MBA, then I have got the placement. That's the MNC name is Kent Aero System Limited. So when I have got the placement, then I have got the post from there like management training. Okay, so that's my work experience in the marketing field for the 2 years. Then after that, I decide that I will be move on from my graduation background because that's my area of interest from the like IT company. So I developed last 2 to 3 months before I developed my skills. So I want to go with the like web development front end from there. There's a company name is CNC Webber. So I decided I will be joined for a company. Then I will be little bit short term course from there. So that's my area of interest from there. So I will go with the like HTML, CSS, JavaScript, and lots of little bit courses. And I've already interact with the like projects from the like Facebook portals and like e-commerce portal from there. So this is my area. So whenever I complete my training, then I have decided to I will go with the like IT company. So that's my hobby from there. Fine, very good explanation. Thank you, sir. यहाँ पे एक दो चीजें करनी है राहुल। सबसे पहले क्या कि जैसे आपने बताया ना कि मेरा मींस इंजीनियरिंग हुई है, देन यू स्टार्टेड एमबीए, तो हमें जैसे आप प्रोफाइल आप भेजते हो तो हमें कुछ चीजों को अपने रिज्यूमे से माइनस करना होगा और कुछ चीजों को मुझे ऐड करना होगा। Yes, sir. रीजन क्या होता है कि जब हम लोग तो कंपनी में अगर मान लो वेब डेवलपमेंट में हम लोग जा रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट में उनको क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल कि आपका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, तो अगर उनकी नीड है तो हम लोग रखेंगे, नहीं तो उसको रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर सब जैसे आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई थिंक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है आपका, तो वो इसमें हमें क्या क्या हो सकता है कि जो ऑलरेडी आपको सीएनसी से एक्सपीरियंस मिलेगा, सो वी कैन वेटेज ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका ये एक्सपीरियंस है, आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। सो वो जो मार्केटिंग की जो चीजें हैं वो चीजें इन करके हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, तो यू विल गेट अ मोर अपॉर्चुनिटी। और उसके जो चांसेस और जो पैकेज होते हैं, देखिए नॉर्मली सैलरी पैकेज भी डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपीरियंस कितना है। तो अगर हमने जो ये 2 साल का अप्रॉक्स है सीएनसी के प्रोजेक्ट पे हम लोग फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। वो हम लोग और सीखेंगे आगे, जैसे आगे एक प्रोजेक्ट हो जाएगा लाइव तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेगा मींस एज एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस वे से हमें उसको आंसर करना है, तो वो हम लोग आगे सीखेंगे, नो वरी। क्योंकि ये एक फर्स्ट सेशन है जो नॉर्मली 0 to 1 वाले बता सकते हैं, लेकिन जब हम लोग 2+ ईयर्स एक्सपीरियंस के जाएंगे तो उस पर मैं आपको अलग वे से एक्सप्लेन करूंगा कि रिज्यूमे में क्या ऐड करना है, क्या निकालना है और क्या इस पे वर्क करना है। Okay, sir. ठीक है, ओके फाइन। अश्विनी, कैन यू स्टार्ट? अश्विनी, यस।
I'm not, you are not audible, Ashwini. Can you be louder? Yes, sir. Am I? Yes, yes, please. Okay, sir. Good evening, sir. I am Ashwini Gagre from IFATA. I have completed my graduation in computer science. So previously, I am doing a job as a lecturer in IFATA. But then I realized that I have so much to do in my career. So I have joined CNC Web World and have completed front-end development certification course from there. In that CNC Web, I have learned so many languages like HTML, CSS, JavaScript, HTML5, CSS, jQuery, Bootstrap. From there, I have done so many projects. So one of them I have done social media project, Okay. which is like I have created one login page. In that we have used OTP system so that we can get valid Okay, data from the Ashwini, user got your point. as well as Okay. okay, So thank you, I'll sir. just. And I want to Mhm. okay, sir, thank you. Okay, I got your point, Ashwini. Now, अच्छा है और थोड़ा सा improve करने की जरूरत है. Mr. Arif, can you explain quickly? Arif. Aditi, you are ready? Yes, sir. हाँ, चलो explain करो क्या बोलोगे? Good evening, sir. Good evening. Thank you for firstly I thank to giving me opportunity to talk about myself. Mhm. I'm Aditi Jadhav. I have done MCA from Pune University. Mhm. I'm basically from Pen, Maharashtra. Mhm. Currently, I'm living Bangalore. I have 7 years and 6 months experience in publishing company. Mhm. I work as a quality assurance Mhm. from 2012 to 2017. Mhm. After my work, I promoted as a graphic designer. Mhm. I work as a 2017 to 2019 as a graphic designer. After I feel learn some new thing, and it is not my background. That's why I changed my career path. I learn many languages, web designing languages from CNC, HTML, CSS, HTML5, Okay, Aditi, one moment. CSS3, jQuery, JavaScript. Yes. हाँ, देखो एक और चीज होती है कि जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं ना, तो एक हमें फ्लो भी मेंटेन करना होता है. आई टेल यू फ्लो किस तरीके से होगा, आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. देखो मैं चाहता हूं कि एक भी कोई ना कोई मिस्टेक ना हो. जैसे मान लो कि टोन देखो, हमें जब मान लो कि हम बोलते हैं कि जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, माय नेम इज अदिति, आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, आई हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, and then I have worked in 6 years in the graphics. जो भी फील्ड आप बता सकते हो. तो ये जो टोन है ना, ये टोन डल है, तो यू हैव टू वर्क ऑन द टोन. इस चीज में टोन में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए. अब इसको किस तरीके से बोल सकते हो? माय नेम इज अदिति जादव, I am computer graduate from Pune University. I have done the certification course from the CNC Web World where I have learned HTML, CSS, JavaScript. तो जब तक कि ये एनर्जी नहीं आएगा ना, तब तक वो मजा नहीं आता है. So when you are going for interview, so it should be like you are energetic to give the answer. So that is the more point. तो टोन में जो है ना डलनेस नहीं चाहिए. So when you are going for interview, so please make sure that your tone जो है so full of energy होनी चाहिए. Okay, sir. Okay. So next, Neha, can you come online? So I'll explain your questions. Neha Nukumbha. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, please.
Yes, sir. Myself, Neha Nikum. I completed my graduation in mathematics in years 2016 from North Maharashtra University, and I am working as an assistant professor for 2 years. Now, after that, I have a gap for 1.5 years, and then I thinking that I have interest in developing like web design development. So I'm now connected with CNC, and there is I learn HTML, CSS, JavaScript. नेहा, 1 मोमेंट। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो ये ध्यान में रखिएगा कि मेरे प्रोफाइल में कोई भी नेगेटिव चीजें हमारे मुंह से नहीं निकले। ओके, रीजन क्या होता है कि पीपल दे, जहाँ पे आप चीजें बताओगे ना, कि जैसे अभी देखो, जैसे हमें मालूम है कि जैसे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो कि आईटी कंपनी उस एक्सपीरियंस को काउंट नहीं करती है, तो हमें इसको नहीं लेना है। या फिर मान लो 1 साल या 1.5 साल का गैप है, हमें नहीं लेना है। ऐसे खासकर लड़कियों के केस में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मैरिज के बाद गैप हो जाता है, कुछ किड्स के बाद जो है, बेबी के बाद गैप हो जाता है, तो ये सारी चीजें होते हैं। तो लड़कियों के केस में लोग मानते हैं कि चलो ये एक नेचुरल वे है, जो चीज होती है। तो आप इस चीज को एक्सक्यूज लेके चल सकते हैं। जैसे हम लोग जब स्टार्ट करेंगे जैसे इंटरव्यू सेशंस आप लोग का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वालों के लिए, तो मैं वहां पे बताऊंगा कि जो ये जो गैप है 2 साल का, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, तो ऑलरेडी सीएनसी आपको एक्सपीरियंस देगा। तो आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्टली वी विल जंप टू द सीएनसी रियल एक्सपीरियंस, एंड देन वी स्टार्ट। और यहाँ पे ये चीजें कंप्लीटली माइनस हो जाएगा कि आपने क्या अलग किए हो जो कंपनी को नहीं चाहिए, वो चीजें को आपने निकाल देना है। ओके, गॉट माय पॉइंट? यस यस। ओके, यस सर। कपिल का क्वेश्चन है, एमटेक ब्रांच 2016 पास आउट, हैड टू एक्सप्लेन सेम वे। कपिल, हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे 2016 के पास आउट हो बट बीपीओ में काम किए हो, तो अभी हम लोग करेंटली दिखाएंगे कि सीएनसी में आप डेवलपमेंट कर रहे हो, बट ये जो है ये मींस जो बीपीओ का ऑलरेडी आपने 2021 है, तो 17 तक आपने वर्क किया, आफ्टर 18 तक उसके बाद आपने सीएनसी ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग सीखा और उसके बाद मैंने डेवलपमेंट पे काम किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस वजह से। प्रणाली का है, आई डोंट नो एनी प्रोजेक्ट रिसेंटली ज्वाइन। कोई इशू नहीं है प्रणाली, जब आगे बढ़ोगे तो ऑलरेडी आप सीख जाओगे प्रोजेक्ट के लिए। एंड्रॉइड ब्लूटूथ समझ में नहीं आया, कौन है आप? डिग्री गैप के बारे में बताओ, नहीं समझ में आपका क्वेश्चन क्या है? ठीक है, एक बार फिर से आप टाइप कर लो, आपका क्वेश्चन क्या है? क्लियर नहीं हुआ। CIR लिखा है आपने, CR इन, एक बार अच्छे से क्वेश्चन टाइप कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। शॉर्टली एक सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अच्छा, सेम क्वेश्चन जैसे हमने बोला ना, एक सिविल का एग्जांपल लेके बताया आपको, तो सेम आप इलेक्ट्रिकल का एग्जांपल लेके बता सकते हो और आप कनेक्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इस पे वर्क कर सकते हो। सेल्फ इंट्रोडक्शन। और आप लोगों को मैं एक जो सीएनसी का हेल्पलाइन नंबर है मैं यहाँ पे डालता हूँ, और जो लोगों ने चेहरा नहीं दिखाया है अभी, ओके, मैं हेल्पलाइन नंबर है मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे अबाउट योर सेल्फ 3 to 5 मिनट्स में बना के आप मुझे व्हाट्सअप करोगे। मैं सबका वीडियो में चेक करूंगा, देखूंगा कि कितना इफेक्टिव आपने बनाया है, और जो मुझे लगेगा कि सही है गलत है, सजेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा। तो सब लोग ये नंबर रख लो, को विदाउट एनी एक्सक्यूज जो है ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आप मुझे व्हाट्सअप करो, वीडियो बना के व्हाट्सएप से। नॉर्मली आप मोबाइल से भी ऐसे ले लो, और मुझे एडिटिंग, कोई एडिटिंग नहीं करेगा। पिछले सेशन में मैंने लिया था, किसी ने मुझे फिल्मोरा में एडिटिंग करके भेजा, मुझे रॉ चाहिए। जस्ट आप किस तरीके से बोलते हो, तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, जस्ट आपको एडिटिंग करके वीडियो बना के मुझे भेजना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
जो आप जो पूछ रहे हो इंजीनियरिंग में गैप है, आप एक काम कीजिएगा, जो नंबर है नहीं हेल्पलाइन का, आप उस पर मुझे रिज्यूमे भेज दीजिएगा, तो एक्सप्लेन करना आसान होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में गैप है तो उसके बेसिस से मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या बोल सकते हो। तो रिज्यूमे आप भेज देना एक बार व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एक और चीजें हैं कि इंटरव्यू में जब हम लोग जाते हैं, इंटरव्यू हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको मीन्स जो टेक्नोलॉजी सिखाई। देखो आप लोग हमेशा कंफ्यूज होता है कि जैसे मान लो आपने जावा सीख लिया या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख लिया, और कंपनी कहती है कि आपको एंड्रॉइड पे काम करनी है, या कंपनी कहती है आपको एंगुलर पे काम करनी है, और यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं उनको यस बोलूँ या ना बोलूँ। तो ये ध्यान में रखो कि जो रिलेटेड टू योर टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल कि हमने फ्रंट एंड पे सीखा और वहाँ पे हम लोग एंगुलर पे जा रहे हैं, तो ये कनेक्टेड है। तो आप वहाँ पे कह सकते हैं स्मार्टली आपको क्या करना है, और कि आपको फ्रंट एंड का नॉलेज होना चाहिए, और इससे कनेक्टेड आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल की टेक्नोलॉजी है एंगुलर कम से कम अलग लाइक 50-60 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो, और आपको डेप्थ में नॉलेज नहीं लेने की बात है, उतना जो डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो रिएक्ट है तो आप उसका थोड़ा बहुत 50-60 क्वेश्चन आप याद कर लो। और ये चीजें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अगर इंटरव्यू में आप जा रहे हो, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ लिया कि आपको एंगुलर का नॉलेज है, तो आप कह सकते हो कि नहीं मैंने काम फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे किया है, बट थोड़ा बहुत मैंने बेसिक चीजें मैंने पढ़ाई की है। इफ दे विल आस्क क्वेश्चन यू कैन गिव द बेसिक आंसर, जो भी 2-4 क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। अगर आपने रिएक्ट पे है तो उतना आप कर सकते हो, क्योंकि जो सीएनसी का सिलेबस है ये कोई भी कंपनी का सिलेबस नहीं होता है, तो ये आप ध्यान में रखना, ये सीएनसी का नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूट का। तो बहुत लोगों का ये रहता है कि चलो मैंने सीएनसी का पूरा वीडियो देख लिया तो मैं इंटरव्यू निकाल लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी सिलेबस, क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि इंटरव्यू किस बेसिस पे होता है कि उनको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि उनको जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग वाले चाहिए तो आपको जावास्क्रिप्ट ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किसी को बूटस्ट्रैप का स्ट्रांग नॉलेज चाहिए तो बूटस्ट्रैप का क्वेश्चन आएगा। ये कंपनी टू कंपनी आपका चेंज होता जाएगा कि कोई जावास्क्रिप्ट कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, कोई बूटस्ट्रैप पे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई जेक्यूरी पे पूछ रहा है। तो आपको जो है उस वे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, हर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। एक और प्रॉब्लम है, किसी का क्वेश्चन था, मैंने शायद मैंने वो मिस कर दिया कि I2I, हाँ, जब भी आप अगर ऑनलाइन इंटरव्यू देते हो तो आप ये ध्यान में रखना कि आपको कैमरा के पास देखना है। मैं एक्चुअली प्रभात का मैं देख रहा था कि कैमरा के पास नहीं, जैसे मानो कि मैं यहाँ पे ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसे लगना चाहिए कि मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ। अगर उसी पे अगर मानो कि मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ये चीज नहीं चलेगा, राइट। सो व्हेन और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होता है आप लोगों का, जो खासकर जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, कि अगर लाइव इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे मान लो ऑफ कैंपस ड्राइव होते हैं, तो लाइव इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है I2I कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होता है I2I कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए? प्लीज टाइप इन मी। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, लड़कों को तो समझ सकते हैं कि I2I कांटेक्ट प्रॉब्लम होता है, लड़कियों क्यों होता है? ओके, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो और I2I कांटेक्ट करने की बात हो तो कीप इट माइंड, मेरे जब भी अगर जूम पे दिख रहा होगा तो मेरा जो फोटो है आप एक बार ब्रॉड कर लेना, ताकि I2I कांटेक्ट का सॉल्यूशन दिखेगा आपको। तो देखो जब भी I2I कांटेक्ट का होती है तो I2I देखो यहाँ पे ये I है हमारा, और इस बीच में नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप कांटेक्ट मेंटेन करो। यहाँ पे मेंटेन करने का प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आंखों में आंखें डाल के देख रहा है और उसके बाद अगर लेफ्ट साइड जो है मूवमेंट किया आई का, या राइट साइड, और आप अगर आंखों में देख रहे हो, क्वेश्चन आपके आंसर कर रहे हो, तो आपका जो मीन्स डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अब डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है कि एक अगर मान लो कि हम मराठी मीडियम से है या बंगाली मीडियम से है या फिर मान लो कम्प्लीटली हिंदी मीडियम से, और क्वेश्चन हम आंसर में कर रहे हैं, तो हमारे पीछे में ट्रांसलेशन चलते रहता है कि पहले वो क्वेश्चन पूछेगा, हम उसको अपने लैंग्वेज में समझेंगे और फिर ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसको सामने वाले को समझाएंगे।
सो ये और ये जो टाइम लगता है, ये टाइम में कितना टाइम चला जाता है, लगभग 30 सेकंड के आसपास, 20 से 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइम चला जाता है। और उस बीच में अगर मान लो कि आवाज जो हम क्वेश्चन सोच रहे हैं हमारे होठों से बाहर नहीं निकलती है, तब तक हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिए रहते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या, और उस बीच में अगर मान लो आई का डिस्ट्रैक्शन आ गया सामने वालों के, तब तो और प्रॉब्लम हो गई। तो इसका ये सॉल्यूशन है कि जब भी आपको आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए बोला जाए, तो आपको आंखों में नहीं देखना है, कीप इट माइंड, ये जो नोज है और ये पार्ट, बस इतना ही पार्ट के सामने आपको देखना है, ना कि सामने वाले को क्या लगेगा कि आप आंखों में देख रहे हो। आप एक बार ट्राई करके देख लेना, किसी के जो है ना नोज और ये टो के बीच में जो है, आप इस पार्ट में आप देखो और बात करो, सामने वाले को रियलाइज भी नहीं होगा कि आपने आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन किया है या नहीं किया है। तो ये स्मार्ट टिप्स है आप लोगों को, ये चीजें लगा, स्मार्ट टिप्स लगा, ST सर्च करो, टाइप करो स्मार्ट टिप्स अगर लगा इस वजह से। तो और यहाँ पे एक और चीजें मैं बताता हूँ कि जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जब इंटरव्यू के लिए जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो खासकर लड़कों के साथ ये इशू होता है कि कोई अगर मान लो कि लड़की है इंटरव्यू ले रही है, तो तो वहां पे क्या होता है कि आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करने में प्रॉब्लम है। तो वहां के लिए आपके लिए आसान है कि इस वजह से कर सकते हो, जैसे लड़कियां भी हैं उनको लगता है कि इस वजह से मेंटेन कर सकते हो। बट अगर सबसे एक और चीज होती है, बहुत लोगों को आदत होती है सर मैम मैडम मिस बोलने का, ठीक है, तो ये इस चीज से दूर आप लोग निकल जाओ। अगर मैं नेक्स्ट सेशन से मैं एक सीरीज शुरू करूंगा कि आपको रिज्यूमे कहाँ कैसे भेजना है, रिज्यूमे में क्या मेंशन करना है, आप जब मेल में क्या लिखना है, और किस तरीके से HR के साथ फ्रेंडली होना है, इस सीरीज में नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा, मतलब नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट करूंगा। तो उस जो नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसे मान लो कि इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, अब जैसे क्वेश्चन पूछा तो बहुत लोगों को लगता है कि हर क्वेश्चन के आगे सर मैम लगाना, ये जरूरी नहीं है। आई टेल यू, अंग्रेज जो है एक वर्ड दे के गया यू में सब आ जाता है। हम हिंदी के जैसा नहीं आप और तुम ऐसा नहीं होता है, एक ही वर्ड है। तो उस केस में आपको बहुत लगता है तो यू कैन एज प्लीज, अगर जॉब दे देगा तो फिर मैं सोचूंगा कि तुमको सर बोलना है या मैम बोलना है या मिस बोलना है। सो बहुत ज्यादा अपने को इस वे से नहीं करना है, मक्खन लगाना या मस्का लगाना नहीं है। जब आप इंटरव्यू दोगे, सिंपली दे विल आस्क अ क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर, बी प्रोफेशनल, यू हैव टू गिव द आंसर इन पोलाइट वे, बट वी हैव टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ द एनर्जी व्हेन यू आर गिविंग द आंसर। सो दिस वे यू कैन गो इट विद दैट। तो ये समझ में आ गया। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे डोर ओपन करते हैं, मैं कम इन सर, जैसे मान लो कि आप ऑफ कैंपस ड्राइव पे जा रहे हो, कोई जरूरी नहीं है जैसे डोर ओपन किया, मैं कम इन, बोला कि ओके हैव अ सीट, ओके थैंक यू। सो यू हैव टू मेंटेन दैट एटीट्यूड। अगर किसी को बहुत आदत लगा हुआ है सर का, ट्राई टू 1 और 2, बट हर क्वेश्चंस में सर और मैम लगाने की जरूरत नहीं है। सो कीप इट माइंड कि हमें इस वे से इंटरव्यू को नहीं लेके जाना है। इंटरव्यू के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग वे से आगे बढ़ना है। तो ये चीजें क्लियर हुआ कि हमें प्रोफेशनली किस वे से आंसर करेंगे इंटरव्यू में। एक्चुअली इंटरव्यू आपका मीन्स अबाउट योरसेल्फ अच्छा था, बट और हम लोग इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक फ्लो, और क्योंकि आपका फेस मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं उस फेस से भी वो कॉन्फिडेंस भी मुझे दिखे। और यही रीजन है कि मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट, मैंने ऑलरेडी मैसेज में आप लोगों को भेजा था कि वीडियो ऑन रखने के लिए, कि एटलीस्ट मैं फेस का आपका एक्सप्रेशन भी समझ पाऊँ कि कितने कॉन्फिडेंटली आप बोल पा रहे हो। सो दैट्स वाई नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो ऑन करके क्वेश्चन का आंसर करो, तो आई कैन गिव यू द रियल टाइम फीडबैक एंड आई मेक यू कंफर्टेबल टू टॉक विद कैमरा, सो यू कैन इजिली गिव द इंटरव्यू। बिकॉज मैं ये चीजें मैं देखा हूँ कि जब भी आप मोबाइल के सामने स्काइप इंटरव्यू होता है और आपका जो है ना फेस आई मूवमेंट इधर से उधर होते रहता है। सो मैं हर वीक कम से कम लगभग 50-60 इंटरव्यू लेता हूँ, और मैं देखता हूँ प्रॉब्लम इस चीज से लोग फेस करते हैं, बट ये चाहता हूँ आपके साथ ना हो। तो इसलिए नेक्स्ट सेशन से
ये क्लियर रहेगा कि सैटरडे को सेशन आओगे तो वीडियो ऑन करके ही सब लोग क्वेश्चन के आंसर करोगे। नेक्स्ट हम लोग किनका है, शामुन, अगर हमारे पास गैप का रीजन है तो हम लोग उसको फिल कर सकते हैं। जैसे कुछ और सेशन हो जाएंगे, मे बी आपका बूस्टअप तक अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जैसे आपका प्रोफाइल भेजना रिज्यूमे बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो भी इनिशियल ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। जो गैप का इशू है उसको भी हम लोग सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। Yes, Swapnil, you can ask if you have any question. सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे अपना हाँ। फ्रंट एंड का टीम होता है ना वर्किंग, Right. तो उसमें जो मीन्स सीनियर होता है जैसे मैनेजर, रिसर्च एनालिसिस, यूआई यूएक्स डेवलपर, वेब डेवलपर और टेस्टर। तो सर जैसे क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग करना है तो एक काम फ्रंट एंड वालों का होता है कि टेस्टर का होता है? देखो क्या होता है कि जो टेस्टिंग जो होती है, कंपेबिलिटी टेस्टिंग, देखो टेस्टिंग अलग अलग तरह की होती है। जैसे मान लो कि हमने मीन्स व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होता है। शायद टेस्टिंग वाला कोई है यहाँ पे, आई थिंक श्रुति है क्या, श्रुति राजेश्वरी कोई है? यस सर। कितने तरह के टेस्टिंग होते हैं? दो तरह के टेस्टिंग होते हैं, एक मैनुअल और ऑटोमेशन। नहीं, उसके अंदर में क्या होता है? उसके अंदर में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। कंपेयर, ये जो ब्राउजर टेस्टिंग किसके अंदर आएगा? ब्राउजर टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स में आएगा क्या? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? कंफ्यूज हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो जो ब्राउजर की जो टेस्टिंग जो होती है ना, ये कंपेबिलिटी टेस्टिंग में आती है। तो तो जब दो तरह से टेस्टिंग, आपने ये सेशन अटेंड किया था क्या एजाइल का? यस सर। स्वप्निल, आप किए थे क्या एजाइल के सेशन में? नो सर, एक्चुअली नहीं किया था मैंने। नहीं किया था। तो देखो क्या होता है कि कंपनी किस मॉडल को फॉलो करती है। जैसे मान लो वाटरफॉल को मॉडल को फॉलो कर रही है, कोई एजाइल को फॉलो कर रहा है, तो उस केस में हमें उसी वे से काम करते हैं। तो अगर मान लो एजाइल का होता है तो एक तरफ से डेवलपमेंट चलता है, एक तरफ से टेस्टिंग चलती है। अभी मान लो कि हमने एक ब्राउजर हमने बनाया, फॉर एग्जांपल कि कोई एक हमने एप्लीकेशन बनाया, उसको हम लोग ब्राउजर पे टेस्ट करते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये पहले हम लोग क्या करते हैं कि 5 ब्राउजर ले लिया है, 2 ब्राउजर, मैंने क्रोम को एक ले लिया रेफरेंस और मोजिला को ले लिया रेफरेंस या फायरफॉक्स को ले लिया रेफरेंस। अब यहाँ पे सफारी को ले लिया, सॉरी मोजिला और फायरफॉक्स से नहीं है, तो हमने लेके यहाँ पे टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे चीजें हो जाती है तो ऑटोमेटिक कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर आ जाती है। तो ये पार्ट टेस्टर का भी होता है, बट कुछ कुछ कंपनी क्या करती है, खासकर स्मॉल और मिड साइज कंपनी में, कि जो इंटरफेस की टेस्टिंग होती है। जैसे मान लो कि हम लोग कोई वेबसाइट का मेनू काम कर रहा है कि नहीं, उसके अंदर में कुछ पीडीएफ फाइल है डाउनलोड हो रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी जो चीजें होती है जिसको हम लोग फंक्शनलिटी टेस्टिंग बोलते हैं, ये पार्ट टेस्टर को रहता है। लेकिन जहाँ पे कोडिंग की पार्ट आ जाती है, जिसको हम लोग यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं, बाद में इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलती है, तो ये पार्ट कुछ डेवलपर भी कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि कंपनी आपका प्रोजेक्ट को किस तरीके से असाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग वो टेस्टिंग पे वर्क करता है। तो समटाइम डेवलपर भी करते हैं, समटाइम वो भी करते हैं। हाँ सर, एक्चुअली क्वेश्चन था मेरा आज का ही, सो मैंने उनको वही एक्सप्लेन किया जो जैसे जैसे मुझे मालूम था। बट मैं पूछ रहा था कि टेस्टर जैसे अपना टीम वर्क रहता है तो टेस्टर का काम रहता है कि डेवलपर का, यही था। हाँ, तो एक्चुअली उसी पे डिपेंड करता है ना कि वो वर्क किसको असाइन किया गया है। जैसे मैंने बोला ना कि फंक्शनलिटी टेस्टिंग को अगर टेस्टर, अभी देखो एमएनसी कंपनी में जाओगे तो ये पूरा काम टेस्टर का हो जाएगा, डेवलपर काम नहीं होगा। मोस्टली एमएनसी कंपनी में जाओगे क्योंकि डिजाइन दे दिया, डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद वो पार्ट जो है टेस्टर के पास चला जाता है। लेकिन अगर मिड साइज या स्मॉल स्केल में जाओगे तो उसमें क्या होता है कि दोनों मिक्स होता है, ये पार्ट तुम कर लो, ये पार्ट तुम कर लो। तो वहां पे कैसा होता है, खासकर स्मॉल मिड साइज में मैनेजमेंट उतना स्ट्रिक्टली नहीं है। वो लोग कोई मीन्स जैसे एजाइल मेथड को फॉलो करते हैं, वाटरफॉल को फॉलो करते हैं, वी मॉडल को फॉलो करते हैं, तो ये सब को फॉलो वो लोग नहीं करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जस्ट क्लाइंट का काम आया बना दो और उसको डिलीवर कर दो। तो उस केस में ये चीजें क्लियरिटी नहीं आती है। ठीक है, क्लियर? उनको बताया मैंने तो हाँ, क्लियर हो गया। बट ये क्वेश्चन था कि एक्चुअली जब टीम होती है तो फिर टेस्टर भी वही काम करेगा, तो वो बोले मुझे कि आप कर सकते हो क्या, तो फिर मैं उनको बता दिया ऐसा ऐसा, तो ओके ठीक है बोले।
ओके ठीक है चलेगा। और कोई क्वेश्चन? हाय सर, अमोल। ये अमोल, हाँ सर मैं ऐसे ही ज्वाइन किया था, मैंने अभी स्वप्निल का क्वेश्चन सुना, हाँ हाँ तो उसको बोलना कि मतलब अगर कंपनी का रिक्वायरमेंट है तो बोल दो कि आप ट्रेनिंग दोगे तो मैं कर लूंगा, बिकॉज सिर्फ यूनिट टेस्टिंग रहता है, तो उसमें अगर एंगुलर वगैरह पे काम कर रहे हैं तो कर्मा जास्मिन का वो थोड़ा पढ़ा देंगे और फिर उस पे आपको बोल सकते हैं, तो बोल दो कि अगर आप ट्रेनिंग दोगे तो मैं करूंगा। हाँ मोल, ऐसे कुछ रहा ना कुछ टेक्निकल में ऐसे जिस पे बोल सके ना, तो मैं वही बोल देता हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली डू, क्योंकि वो नंबर ऑफ टाइम ना फोटोशॉप बोलते हैं, तो मैं हाँ उनको हाँ वही बोलता हूँ कि प्रीवियसली नॉट वर्क बट इफ यू डू मी ट्रेनिंग डेफिनेटली डू। ये तो अभी हो ही गया बोलने का भी, लेकिन अभी ना हर बार नया नया एक्सपीरियंस आता है, मैं सर से शेयर करता ही हूँ। एक और चीजें कर सकते हो, मालूम है कि जब भी आप इस पे काम करते हो मीन्स एज एक्सपीरियंस जाते हो, तो जब मैंने ऑलरेडी आप लोग को ये भी चीजें बताया है कि जैसे मान लो कि फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि चलो मुझे रिएक्ट पे एंगुलर पे बताओ आंसर, तो वो चीजों को नहीं बता सकते हो, बोले कि उस पर मेरा टीएल काम किया या मैनेजर काम किया, कोई डिप्लॉयमेंट की चीजें है तो उसने इस पे काम किया, तो इस वजह से आप वहाँ पे उसको आंसर कर सकते हो। जो आपका स्ट्रांग है वो उसको वो पार्ट को बोलो मैंने किया है, जो आपका वीकनेस पार्ट है वो बोलो कि आपने कोई और मीन्स कोई और उस पे काम किया है। ओके स्वप्निल, कौन सी कंपनी थी? राहुल का क्वेश्चन है, इंटरव्यू किसका था, किन सी कंपनी में आज का? अहमदाबाद का सर था सर, टेक्निकल निकल गया, अभी वो मुझे टेम्पलेट भेजने वाले, तो वो टेक्निकल थे। नाम याद है? सर नाम तो याद नहीं, मेल है उनका मेरे पास। अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अहमदाबाद के है सर, गुजरात। हाँ तो तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, क्योंकि 9 o'clock से ऑलरेडी एक मैम का सेशन है, तो फिर उन लोगों को डिले होगा। और आज के सेशंस में कितने लोगों को लगा कि प्रोडक्टिव है? टाइप पी अगर प्रोडक्टिव है, अगर लगता है कि प्रोडक्टिव नहीं हुआ तो टाइप एन पी क्लियरली नो प्रोडक्टिव। सर मुझे एक क्वेश्चन था हाँ कि पूछिए। अगर मैं टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सर्टिफिकेशन कर रही हूँ, तो क्या इंटरव्यू में डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या वो? कोर जावा के क्वेश्चन पूछेंगे आपको। ओके थैंक यू। क्योंकि जो ऑटोमेशन टेस्टिंग जो खासकर सेलेनियम है वो कोर जावा से बना हुआ है, तो आपको मैनुअल टेस्टिंग कोर जावा लगभग 40% तो कोर जावा डेफिनेटली होगा। तो आपका कोर जावा का सेशन स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ है अभी। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको एक लिंक देता हूँ, मंडे से ज्वाइन कर लेना कोर जावा का सेशन। ओके थैंक यू। ओके ओके वेलकम। तो जितने भी लोग हैं अभी ऑनलाइन, सारे लोग मुझे मंडे तक, टिल मंडे यू हैव अ टाइम, सैटरडे एंड हो गया, संडे, और मंडे तक अबाउट योर सेल्फ कम से कम 3 to 5 मिनट्स का वीडियो बना के मुझे सेंड कर देना, और अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन रिव्यू। और नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग कुछ और टॉपिक लेंगे। और किन लोगों को लगता है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है? टेल मी हाउ मेनी पीपल फील दैट यू हैव इशू विथ इंग्लिश, टाइप मी, जिसको लगता है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश का सेशन मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ऐसा रहा तो आप लोग कितना टाइम दे सकते हो? एक्चुअली कैसा होता है मैं बताता हूँ कि प्रीवियस सेशन मैंने प्रीवियस बैच के लिए भी मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट में लोग आते हैं, मीन्स मैंने एक जीडी के तरह ही मैंने स्टार्ट किया था। आपको अगर यूट्यूब पे दिख जाएगा सी इंग्लिश हैकाथन करके प्रोग्राम, कि कोई एक टॉपिक 2 का ग्रुप बना दिया जाता था और उसमें आपको एक टॉपिक पर डिस्कस करना होता है, और वो टॉपिक आप मुझे सेंड करते थे। तो बट नॉर्मली 1 महीने के बाद सब लोग बोर हो जाते थे, तो आप लोगों में से कितने लोग हो जो 1 महीने के बाद बोर हो जाओगे? अगर सीरियसली करोगे तो वी कैन स्टार्ट विद द सेम इंग्लिश हैकाथन विद ऑल ऑफ यू गाइज, सो यू कैन वर्क ऑन इंग्लिश, सो इट विल बी इजी टू लाइक बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि घर में और कोई मिलता नहीं है इंग्लिश बोलने वाला, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम हम लोग 8 बजे 8 o'clock को हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे,
और हम लोग इस पे वर्क करेंगे। और एक हाफ एन आवर में एचआर के क्वेश्चंस रखूंगा एंड हाफ एन आवर विल वर्क ऑन इंग्लिश। इफ आई कैन सी मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर रेडी टू गो विथ इंग्लिश, देन मैं वीक में एक अलग सेशन में स्टार्ट कर दूंगा, वीक में जिसमें 1 आवर का सेशन रहेगा और जहाँ पे आपको इंग्लिश पे वर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज वी मेक ए टीम, मैं एक ग्रुप बना दूंगा, 2 लोग 3 लोगों का ग्रुप बना दूंगा जिसमें आपको वीडियोस पे वर्क करना है और वीडियो मुझे फिर आपको सेंड करना है। तो ये चीजें होगा तो नेक्स्ट वीक तक मैं आपको कर लूंगा, लेकिन आप ऑनेस्टली के साथ करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। फाइन, और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि 9 o'clock को मैम का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होगा, सो क्विकली इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज विल इन द सेशन। हेलो। यस सर। सर अमोल सर की क्लासेस कल कितने बजे से है? कल एक्चुअली 4 o'clock को है, बट कल मैम का भी सेशन है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ तो आपको मैसेज आ जाएगा। But last one class I was not attend from there. So what was the topic was there? Like mostly the interview questions what they ask. So we have a recording, so you can mail us your email address. I'll give you the link. You can connect and you can watch that video also. Okay, I will I will go with the WhatsApp. Okay. You can send your email address. We will give you that class access. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, welcome. Okay, now any more question? Anyone? Okay, fine. So session in करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग फिर से सेम टाइम पे मिलेंगे। इन बिटवीन विल सी हाउ इट्स हैपेंड एंड कल का जो सेशन रहेगा आपको टाइम का अपडेट आ जाएगा शाम तक, कल आफ्टरनून तक आ जाएगा मे बी। ठीक है, ठीक है, चलो ओके फिर थैंक यू सो मच। और किसी का है कोई क्वेश्चन? नो? ओके फाइन देन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइज।